And today we want to think about a word that many people use, love, but which most people don't understand. हम आज उस शब्द के बारे में विचार करना चाहते हैं जिसका उपयोग बहुत से लोग करते हैं, प्रेम, लेकिन जिसका अर्थ अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। True love is unselfish. The love which many people think of is actually selfish lust. सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसे बहुत से लोग प्रेम समझते हैं, वास्तव में स्वार्थी वासना है। And we want to consider what it means to really love, as seen in the life of Jesus Christ, our Lord. हम इस बात पर विचार करना चाहते हैं कि वास्तव में प्रेम करने का अर्थ क्या है, जैसा कि हमने हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखा है। When we speak about holiness, many people think of holiness as dry, starchy religion, repulsive, hard, strict. But that's not the holiness Jesus manifested. जब हम पवित्रता के बारे में बात करते हैं तो बहुत से लोग पवित्रता को सूखा, कड़ा धर्म, डरावना, कठोर या सख्त मानते हैं, लेकिन यह वह पवित्रता नहीं है जो यीशु ने प्रकट की थी। God is holy, absolutely holy. But the Bible says God is love. परमेश्वर पवित्र है, बिल्कुल पवित्र। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। True holiness is perfect love. I want to say that again. Did you hear it? इसलिए सच्ची पवित्रता सिद्ध प्रेम है। मैं इसे फिर से कहना चाहता हूँ, क्या आपने सुना? True holiness is perfect love. सच्ची पवित्रता सिद्ध प्रेम है। If you have holiness without love, it's not the holiness of Jesus Christ. यदि आपके पास प्रेम के बिना पवित्रता है तो यह यीशु मसीह की पवित्रता नहीं है। It's the so-called holiness of the Pharisees. It is self-righteousness. यह फरीसियों की तथाकथित पवित्रता है, यह स्वयं धार्मिकता है। It's maybe a disciplined life, and maybe you pay your taxes, you pray, read the Bible, and tithe and do so many things. यह एक अनुशासित जीवन हो सकता है। शायद आप अपना कर चुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दशमांश देते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। But you're like a skeleton. लेकिन आप एक कंकाल की तरह हैं। And you can't draw people. People are not attracted to a skeleton. यदि आप कंकाल है तो आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। लोग कंकाल की ओर आकर्षित नहीं होते। Supposing you're walking down a dark street one night and you see a skeleton walking towards you, just a skeleton. मान लीजिए कि आप एक रात एक अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं और आप एक कंकाल को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, सिर्फ एक कंकाल। A skull and bones walking towards you from the other direction. What would you do? सिर्फ खोपड़ी और हड्डियां विपरीत दिशा से आपकी ओर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? Would you feel like embracing that one, running forward to meet that, or would you feel like turning around and running away? क्या आपका उसे गले लगाने का मन करेगा, उससे मिलने के लिए आगे बढ़ेंगे, या आपका मन पलटकर भाग जाने का होगा? That is how the Pharisees were. फरीसी ऐसे ही थे। People felt like running away from them. And unfortunately, that is how many self-righteous Christians are. लोगों को उनसे दूर भागने का मन करता था। दुर्भाग्य से कितने स्वधर्मी मसीही ऐसे ही हैं। Even many Christians who say we are in the separated assemblies. We are not like the dead denominations. We are separated from all that. We are holy. But they're like skeletons. यहाँ तक कि कई मसीही भी कहते हैं, हम अलग की हुई कलीसिया में हैं, हम मृत जातियों की तरह नहीं हैं, हम उन सब से अलग हो गए हैं, हम पवित्र हैं, लेकिन वे कंकाल की तरह हैं। People run away from them. They're like the Pharisees. लोग उनसे दूर भागते हैं, वे फरीसियों के समान हैं। But Jesus was not like that. Yes, we need to be holy. We need to have truth. लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं थे। हाँ, हमें पवित्र होने की आवश्यकता है, हमें सत्य रखने की आवश्यकता है। But the Bible says that the glory of God, John 1:14, was seen in Jesus, full of grace and truth. There's a balance. बाइबल यूहन्ना 1:14 में कहती है कि परमेश्वर की महिमा यीशु में देखी गई, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। वहां पर एक संतुलन है। See, in your body, do we need bones or not? If you didn't have bones, you wouldn't be able to stand up. You wouldn't be able to sit down. You'll collapse like a jellyfish that has got no bones in it. हमारे शरीर पर विचार करें, क्या हमें हड्डियों की आवश्यकता है या नहीं?
यदि आपके पास हड्डियां न हो तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, तुम उस जेलीफिश की तरह ढह जाओगे जिसमें कोई हड्डियां नहीं होती। And spiritually speaking, some people are like that. You know, there's certain disadvantages in having bones. आध्यात्मिक रूप से कहें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जानते हैं कि हड्डियों के होने से कुछ नुकसान भी होते हैं। For example, you cannot squeeze through a very narrow opening. उदाहरण के लिए आप बहुत संकीर्ण छिद्र से नहीं निकल सकते। But a jellyfish can squeeze through anything. It just becomes thin because it's got no bones and slides through it. लेकिन जेलीफिश किसी भी चीज को से निकल सकती है। यह बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई हड्डियां नहीं होती है और यह फिसल जाता है। It's like a sponge. You can squeeze a sponge through any opening, any shape, any size. यह एक स्पंज की तरह है। आप स्पंज को किसी भी छेद, किसी भी आकार और किसी भी प्रकार में से दबाकर निकाल सकते हैं। But we can't go through because we got bones. लेकिन हम वहां से नहीं निकल सकते क्योंकि हम में हड्डियां होती हैं। And some people spiritually are like jellyfish. कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से कहें तो जेलीफिश की तरह होते हैं। They compromise. They have no convictions. They don't stand for the truth. They don't stand for holiness. They are like people without any वे bones. समझौता कर लेते हैं, उनका कोई दृढ़ विश्वास नहीं है, वे सच्चाई के लिए खड़े नहीं होते, वे पवित्रता के पक्ष में नहीं है, वे बिना हड्डियों वाले लोगों की तरह है। That's certainly not God's यह will. निश्चित रूप से परमेश्वर की इच्छा नहीं है। But on the other hand, if we are only bones, like I said, you'll be like a skeleton. You'll scare people away. दूसरी ओर यदि हम केवल हड्डियां हैं, जैसा कि मैंने कहा, आप एक कंकाल की तरह होंगे, आप लोगों को डरा देंगे। But God has made this body so beautiful. What is it that makes our body लेकिन attractive? परमेश्वर ने इस शरीर को बहुत सुंदर बनाया है। वह क्या है जो हमारे शरीर को आकर्षक बनाता है? The bones are covered over with flesh. When you say somebody is handsome or a girl is pretty, what do you mean? हड्डियां जो मांस से ढकी होती हैं। अब आप कहते हैं कि कोई सुंदर है या कोई लड़की सुंदर है, तो आपका क्या मतलब है? It's not their skeleton. I mean, if you pull off their flesh, their skeletons look the same as the ugliest people in the world. यह उनका कंकाल नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है, यदि आप मांस को खींच लेते हैं तो कंकाल दुनिया के सबसे बदसूरत लोगों जैसा ही दिखता है। It's the flesh on top of that skeleton, beautifully featured, that makes somebody attractive. यह उस कंकाल के ऊपर का मांस है जिसे खूबसूरती से चित्रित किया गया है, जो किसी को आकर्षक बनाता है। Now apply this to the Christian life. It's not just truth, it's grace on top of the truth that makes the words attractive. अब इसे मसीही जीवन पर लागू करें। यह सिर्फ सत्य ही नहीं, लेकिन सत्य के ऊपर मौजूद अनुग्रह है जो शब्दों को आकर्षक बनाता है। It's love and holiness. God is light and God is love. The two are inseparable. यह प्रेम और पवित्रता है। परमेश्वर प्रकाश है और परमेश्वर प्रेम है। दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। True holiness is full of love and true love is perfectly pure. सच्ची पवित्रता प्रेम से भरी है और सच्चा प्रेम सिद्धता के साथ शुद्ध है। So in a sense, they are not different. इस अर्थ में वे भिन्न नहीं है। When people say they have a great love for everybody, but if they don't live in purity and righteousness, that's just not divine love. That's just wishy-washy sentimentality. मेरा मतलब है, लोग कहते हैं कि उनके मन में हर किसी के लिए बहुत प्रेम है, लेकिन अगर वे पवित्रता और धार्मिकता में नहीं रहते हैं तो यह दिव्य प्रेम नहीं है, वह तो केवल कपटी भावुकता है। But those who claim to have great holiness but don't have compassion and love for people, they are just Pharisees. जो लोग महान पवित्रता का दावा करते हैं लेकिन लोगों के लिए दया और प्रेम नहीं रखते हैं, वे सिर्फ फरीसी हैं। So, how is it with Jesus? He was not a skeleton and he was not a jellyfish. He had all the truth. प्रभु यीशु के साथ यह कैसा है? वह कोई कंकाल नहीं है और वह एक कोई जेलीफिश की तरह नहीं है। उनके पास सारी सच्चाई है। He stood for everything that the law of God stood for, more than the Pharisees did, but he was not just bones. वह फरीसियों की तुलना में हर उस बात के लिए खड़ा था जिसके लिए परमेश्वर की व्यवस्था खड़ी थी। वह सिर्फ हड्डियां नहीं था। The bones were covered over with flesh, as God intended human beings to be. हड्डियां मांस से ढकी हुई थी, जैसा कि परमेश्वर ने मनुष्य से चाहा था। And this is the balance of the divine glory that the Holy Spirit has come to communicate to you and me. यह दिव्य महिमा का संतुलन है जिसे पवित्र आत्मा आपको और मुझे बताने के लिए आया है। Not to make you like a skeleton, a Christian who drives other people away. आपको एक कंकाल, एक
ऐसा मसीही बनाने के लिए नहीं जो अन्य लोगों को दूर भगाता है। Neither does God want us to be like wishy-washy jellyfish, just compromising and able to fit into any type of opening. No, God doesn't want that either. और न ही ईश्वर चाहता है कि हम एक फिसलने वाली जेलीफिश बने, बस समझौता करे और किसी भी प्रकार की खुली जगह में समा जाने में सक्षम हो। नहीं, परमेश्वर ऐसा भी नहीं We चाहता। read that Jesus spoke the truth, but he spoke it in love. हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सत्य कहा, परंतु उसने इसे प्रेम में कहा। His words had authority, but they were also gracious. उनके शब्दों में अधिकार था, लेकिन वे दयालु शब्द भी थे। When it says that God is love, it doesn't mean that he acts lovingly. जब यह कहा जाता है कि ईश्वर प्रेम है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल प्रेम पूर्वक अभिनय करता है। Now, a person can act lovingly without be loving in his heart. It may be just an external action which is just done to impress अब others. कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में प्रेम के बिना भी प्रेम पूर्वक अभिनय कर सकता है। यह महज एक बाहरी कार्रवाई हो सकती है जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए की जाती है। Jesus did not just go around doing acts of love. Now we can imitate somebody and do acts of love, help the poor and do good. यीशु केवल प्रेम के अभिनय ही नहीं करते रहे। हम किसी की नकल कर सकते हैं और प्रेम अभिनय कर सकते हैं, जैसे गरीबों की मदद करना, अच्छा करना। No, Jesus' love came from deep within his heart. Just like holiness and humility, it can be put on the outside, but that's just a garment that a person can take off or put on. नहीं, यीशु का प्रेम उसके हृदय की गहराई से आया था। पवित्रता और नम्रता की तरह प्रेम को भी बाहर से प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर यह सिर्फ एक पोशाक की तरह होगा जिसके कोई व्यक्ति पहन या उतार सकता है। But the Bible says, Jesus said, he who believes in him from his innermost being, rivers of living water will flow. The spirit-filled man is a man from whose innermost being humility, holiness, love flow out. यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आत्मा से भरपूर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसके अंतरम से विनम्रता, पवित्रता और प्रेम प्रवाहित होता है। Our thoughts and our attitudes become holy and loving, not just the words and our actions. That can be just diplomacy. हमारे विचार और हमारे व्यवहार पवित्र और प्रेम पूर्ण बनते हैं, न कि केवल शब्द और हमारे कार्य में। वह सिर्फ कूटनीति नहीं है। When we do something or say something, our thoughts and attitudes towards that other person or towards those people give a certain odor or smell to our life. आप जानते हैं कि जब हम कुछ करते हैं या कुछ कहते हैं, तो हमारे विचार और दृष्टिकोण उस दूसरे व्यक्ति के प्रति या उन लोगों के प्रति हमारे जीवन की एक निश्चित गंध या खुशबू देते हैं। And others can easily detect it. Words and actions of love count for nothing if our thoughts and attitudes towards others are still critical and selfish. अन्य लोग इसका आसानी से पता लगा सकते हैं यदि दूसरे के प्रति हमारे विचार और दृष्टिकोण अभी भी आलोचनात्मक और स्वार्थी है, तो प्रेम के शब्दों और कार्यों का कोई महत्व नहीं है। The Bible says in Psalm 51 verse 6, David said that after he had sinned, God desires truth in the innermost being. बाइबल भजन 51:6 में कहती है, दाऊद ने पाप करने के बाद कहा था, परमेश्वर अंतरतम में सत्य चाहता है। He wants love to flow from our hearts. वह चाहता है कि हमारे हृदय से प्रेम बहे। That's how it was with Jesus. And so as we look at the life of Jesus, we can see what the Holy Spirit wants to make in our own life. यीशु के साथ भी ऐसा ही था। इसलिए जब हम यीशु के जीवन को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को क्या बनाना चाहता है। Let me say first of all that if you love a person, you will value him. You see, Jesus placed a very high value on all human beings. It didn't matter whether they were cultured or intelligent or clever or smart or rich. सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो आप उसे महत्व देंगे। आप देखिए, यीशु ने सभी मनुष्य को बहुत उच्च मूल्य दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे संस्कृत, बुद्धिमान, चतुर, होशियार या अमीर थे। It's very easy to place a great value on cultured, intelligent, rich people. But a godly man would value all people, whether he is dressed in a suit and a tie or whether he's a beggar.
सुसंस्कृत, बुद्धिमान, अमीर लोगों को बहुत महत्व देना बहुत आसान है, परंतु एक ईश्वरीय व्यक्ति सभी लोगों को महत्व देगा, चाहे उसने सूट और टाई पहना हो या वह एक भिखारी हो। If you can't value a beggar as one of God's creation, as one who is made in the image of God, do you know that the Bible says in James chapter 3 that all human beings are made in the image of God? यदि आप एक भिखारी को ईश्वर की रचना के रूप में, ईश्वर के स्वरूप में बने व्यक्ति के रूप में महत्व नहीं दे सकते, तो आप उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्या आप जानते हैं कि बाइबल याकूब 3:9 में क्या कहती है कि सभी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं? Yeah, you read that in James and chapter 3 where it speaks about our use of our tongue. It says in verse 9, men have been made in the likeness of God. हाँ, याकूब 3:8 में हमारी जीभ के उपयोग के संदर्भ में कहता है, और फिर वचन 9 में मनुष्य को ईश्वर की समानता में बनाया गया के बारे में कहता है। What about that beggar with his ragged clothes and lack of culture and illiterate? Is he made in the image of God? फटे पुराने कपड़ों, संस्कृति की कमी और अशिक्षा वाले भिखारी के बारे में क्या वह परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है? If so, you will respect him. Jesus respected all people. यदि हाँ, तो आप उसका सम्मान करेंगे। यीशु सभी लोगों का सम्मान करते थे। He did not make any difference between the rich and the poor, the educated, the uneducated, the cultured, the uncultured, or even between the righteous and the sinner. उन्होंने अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं किया, शिक्षित, अशिक्षित, सुसंस्कृत और असंस्कृत, और यहाँ तक कि धर्मियों और पापियों के बीच भी। He valued everyone because everyone was made by God. वह हर किसी को महत्व देता था, क्योंकि हर कोई परमेश्वर द्वारा बनाया गया है। Everyone was loved by God. He came to die for everyone. हर कोई परमेश्वर का प्रिय है, वो सबके पापों के लिए मरने आया था। We can think that when we start loving our fellow believers in our local church, that itself is something wonderful. It certainly is. हम सोच सकते हैं कि जब हम अपने स्थानीय कलीसिया में अपने साथी विश्वासियों से प्रेम करना शुरू करते हैं, तो यह अपने आप में एक अद्भुत चीज है, यह निश्चित ही है। But Jesus loved all men. Do you think he healed only the sick who believed in him for salvation from sin? लेकिन यीशु सभी मनुष्य से प्रेम करते थे। क्या आपको लगता है कि उसने केवल उन बीमारों को चंगा किया जो पाप से मुक्ति के लिए उस पर विश्वास करते थे? No. He healed so many sick people who were not interested in receiving anything further from him. नहीं, उसने बहुत से बीमार लोगों को ठीक किया जो उससे और कुछ पाने में रुचि नहीं रखते थे। That was how his goodness was. उनकी अच्छाई ऐसी ही थी। Jesus never despised anyone because they were poor or ignorant or ugly. No. यीशु ने कभी किसी का तिरस्कार नहीं किया क्योंकि वे गरीब या अज्ञानी या बदसूरत थे। नहीं। Jesus once said that the whole world was not as valuable as one human soul. यीशु ने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया एक मानव आत्मा जितनी मूल्यवान नहीं है। That's how he valued men. You know, just like you value your treasures, your stocks and shares, and your house and land and bank account and gold bars and whatever else you have, your car. इसी प्रकार वो मनुष्य को महत्व देता था, जैसे तुम अपने खजाने को महत्व देते हो, आपके स्टॉक और आपके शेयर, आपका घर, जमीन, बैंक खाता, सोने की छड़े, कार और जो कुछ भी आपके पास है। Put it all together. For Jesus, one human soul was worth more than all that, and much more than that. He said it was worth more than the whole world. And that's why he delighted in men. उन सभी वस्तुओं को एक साथ रख दे, यीशु के लिए एक मानव आत्मा उन सब से अधिक मूल्यवान है और उससे भी कई अधिक। उन्होंने कहा कि इसका मूल्य पूरे दुनिया से कई अधिक है, इसी कारण वो मनुष्य से प्रसन्न होता है। He valued them. He delighted in them. He saw those men as people who have been bound by Satan, deceived, and he longed to bring them to the light and to set them free. वह उन्हें महत्व देता है। उसने उन लोगों को देखा, वे लोग जो शैतान द्वारा बांधे जा रहे थे और धोखा खा रहे थे, वह उन्हें प्रकाश में लाने और उन्हें स्वतंत्र करने की इच्छा रखता था। And his love for man was so great that he was willing even to pay the ultimate price of death
in order to free men from sin's grip over their lives. और मनुष्य के प्रति उसका प्रेम इतना महान था कि वह मनुष्य को उनके जीवन पर पाप की पकड़ से मुक्त करने के लिए मृत्यु की अंतिम कीमत भी चुकाने को तैयार था. And it's because he was willing to die for men to save them from their sins that he had the right to preach against sin so forcefully. क्योंकि वो मनुष्य को उनके पापों से बचाने के लिए उनके लिए मरने को तैयार था, इसलिए उसे इतनी ताकत से पाप के विरुद्ध उपदेश देने का अधिकार था. You know, Jesus turned around to the Pharisees and said, "You generation of vipers." Do you think you and I can say that to religious people, even if they are as bad as the Pharisees? Well, you can say that if you love them enough to die for them. आप जानते हैं कि यीशु ने फरीसियों को की ओर घूमकर कहा, हे सांप के बच्चों, क्या आपको लगता है कि आप और मैं धार्मिक लोगों से ऐसा कह सकते हैं? भले ही वे फरीसियों जितने ही बुरे हो, ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन कब? यदि आप उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए मर भी सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर. Otherwise you can't. It's very easy to get up and say it. Any fool can get up and say such words. But to say it in the spirit of Christ is quite another thing. अन्यथा आप नहीं कर सकते. उठना और कहना बहुत आसान है. कोई भी मूर्ख उठकर ऐसे शब्द कह सकता है, परंतु इसे मसीह की आत्मा से कहना बिल्कुल दूसरी बात है. Remember, he was willing to die to save them from their sin. याद रखे, वह उन्हें उनके पाप से बचाने के लिए उनके लिए मरने को तैयार था. And that's why he had the right to use such strong words. और इसीलिए उसे ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार था. We have no right to preach against sin if we are not willing to do anything to save people from their sin. यदि हम लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो हमें पाप के विरुद्ध उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है. This is what it means to speak the truth in love. To speak the truth is easy. Anybody can do that. प्रेम में सच बोलने का यही मतलब है. सच बोलना आसान है, ऐसा कोई भी कर सकता है. Some people think, I'm a great prophet, I'm going to speak the truth. But to be like Jesus, we got to do it in love. कुछ लोग सोचते हैं, मैं एक महान भविष्यवक्ता हूँ, मैं सच कहने जा रहा हूँ, लेकिन यीशु की तरह बनने के लिए हमें इसे प्रेम में करना होगा. And so let's look at the life of Jesus more carefully and see how this love came from his heart and ask the Holy Spirit to fill your heart with that same love. आइए हम यीशु के जीवन को अधिक ध्यान से देखें और देखें कि यह प्रेम उनके जीवन से कैसा आया, और पवित्र आत्मा से हमारे हृदय को उसी प्रेम से भरने के लिए कहें.